Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. In our today's semantic lecture, we are going to study Unit 3, and the name of the unit is Dimensions of Meaning. And we will cover these 8 topics: reference and denotation, connotation, sense relations, lexical and grammatical meanings, morphemes, homonymy, and polysemy, lexical ambiguity, sense meaning, sentence meaning. So let's begin. We will start from number 1. We will start from the introduction. Language is not just a group of words, it is full of meaning. Language सिर्फ words का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का नाम नहीं है, ये मीनिंग से फुल है, आइडियाज, फीलिंग से. व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस. जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो वर्ड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स के जरिए. आस्क क्वेश्चन, गिव कमांड्स और शेयर इमोशंस. बट द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स इज नॉट ऑलवेज सिंपल. लेकिन वर्ड्स की मीनिंग हमेशा सिंपल नहीं होते. वन वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग. एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है. एंड समटाइम वर्ड्स कैन बी कंफ्यूजिंग. दैट्स व्हाई वी स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मीनिंग. इसलिए हम पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं मीनिंग्स के इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज में. दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है, लाइक रेफरेंस एंड डेनोटेशन. व्हाट अ वर्ड्स पॉइंट टू, ये वर्ड जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है. कॉनोटेशन, extra feelings behind a word. Sense relation, how words relate to each other. And lexical and grammatical meaning, what a words mean, कि एक words का क्या मतलब है, and how it work in a sentence. We also learn about morphemes. हम morphemes के बारे में पढ़ते हैं. Morphemes, smallest जो parts होते हैं words के, उनको कहते हैं. और homonymy and polysemy, ठीक, के बारे में पढ़ते हैं. Words with the same form but different meaning. Lexical ambiguity के बारे में पढ़ते हैं. When a word has two meaning in the same sentence. A sentence meaning, the meaning of the whole sentence, not just words. All these helps us, ये सारी चीजें हमारी हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड लैंग्वेज बेटर एंड यूज इट करेक्टली इन एवरीडे लाइफ. अब हम टॉपिक नंबर 1 को देखते हैं, रेफरेंस एंड डेनोटेशन. Reference and denotation are both how words connect to the real world. When we speak, जब हम बोलते हैं or write, use words to point to people, things, places or ideas. This is called reference. For example, if I say, that man is my teacher. ठीक है, the word that man, ये जो that man का लफ्ज है, is pointing, वो point out कर रहा है to a specific person in front of us. So reference is when we use words to show or refer to something in real situation. अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो डेनोटेशन, ये क्या है. डेनोटेशन ऑन द अदर हैंड इज द बेसिक डिक्शनरी मीनिंग. डेनोटेशन का मतलब आप ये समझें कि जो डिक्शनरी में मीनिंग, सीधे सीधे मीनिंग वर्ड के लिखे होते हैं, वो होते हैं. The things or ideas it stand for in general. For example, the word dog denotes denotes an animal with 4 legs that barks. It refers to all dogs, not just one specific dog. So denotation is about general meaning, not about a specific case. Denotation of word sun, ये जो sun लफ्ज है, is the big star in the sky that gives light. Reference is when I say, look at the sun right now, and I'm pointing to the sun in the sky. So in short, denotation, the general meaning, denotation word के general meaning होते हैं, और reference the actual thing or person we are talking about. वो actual thing or person जिससे हम बात कर रहे होते हैं या जिसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं real life में. Both helps us understand and use language to talk about the world around us. Connotation.
Connotation means the extra feelings or the or ideas that come with the word, यानी एक्स्ट्रा बातें, अलामती मतलब, मजाजी मीनिंग जिनको हम कहते हैं, besides its basic meaning. Every word has a simple dictionary meaning that is called annotation, but sometimes a word also gives extra emotion, thought, or images. These are called connotation. Let's take a simple example. The word home means a place where someone lives. That it's denotation. But when people hear home, they also think of love, safety, warmth, family. This extra feelings is its connotation. Now let's compare two words. Slime and skinny both mean thin, but slime has positive connotation. It sounds attractive. इसका मतलब attractive होता है. Skinny has a negative connotation. It sounds unhealthy or weak. Here are more examples. Cheap. Cheap, low price, ये इसकी denotation है. But it can also mean poor quality, negative, inexpensive, also low price denotation, but sounds polite and positive, good connotation है. So connotation जो है वो हकीकी मतलब समझ लें होते हैं. ठीक है. और सॉरी, जो कॉनोटेशन होते हैं ये मजाजी मतलब होते हैं, एक्स्ट्रा मीनिंग्स होते हैं, फीलिंग्स जो अटैच हम करते हैं. और डेनोटेशन जो होते हैं वो डिक्शनरी मीनिंग यानी कि रियल मीनिंग जो जैसे मीनिंग होते हैं वही. सेंस रिलेशन. Sense relation are the ways in which words are related to each other. Sense relation का मतलब है वो तरीके जिसमें words relate करते हैं एक दूसरे के related to each other in meanings के हवाले से. Some words are similar, some are opposite, and some are a part of a group. These relationship between words में ये relationship help us understand the meaning of language better. अब जैसे सिनोनिम है, तो सिनोनिम क्या होते हैं? सेम और नियरली सेम मीनिंग. जैसे हैप्पी है तो जॉयफुल हो गया. अब दोनों का मतलब गुड है. इसी तरह जो है एंटोनिम अगर हम देखें तो एंटोनिम उल्ट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं. जैसे हॉट है तो इसका उल्ट हम कोल्ड हम लगाएंगे. ठीक है. इसी तरह hyponyms और hypernames. A hyponym is a word that is a part of a bigger group. और जो hypernym होता है is the general category. For example, rose, tulip and lily. ये सेम कैटेगरी में आते हैं, बिगर कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. तो ये hyponym है ऑफ फ्लावर. ठीक है. जैसे a rose is a kind of flowers. ठीक है. तो अब हम देखते हैं ये जो है ना, हम देखेंगे, ये देखें इसकी एग्जांपल. रोज, ट्यूलिप एंड लिली आर हाइपोनेम्स ऑफ फ्लावर. ठीक है. विच इज द हाइपरनेम? अब हाइपरनेम जनरल कैटेगरी है तो फ्लावर जो है ये जनरल कैटेगरी हो गया. रोज, ट्यूलिप और लिली जो हैं ये क्या हैं? ये उस ग्रुप का पार्ट हैं. अब हम हेमोनिम्स देखते हैं. दीज आर द वर्ड दैट साउंड द सेम और आर स्पेल्ड द सेम. ये सेम होते हैं और इनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं. जैसे बैट. ठीक है. अब बैट एनिमल भी है और बैट क्रिकेट का बैट भी है. पोलिसिमी, अ सिंगल वर्ड दैट हैज मोर देन वन रिलेटेड मीनिंग. जिसके ज्यादा मीनिंग होते हैं. जैसे हेड जो है टॉप ऑफ योर बॉडी, सर को भी कहते हैं. और द लीडर ऑफ द ग्रुप यानी दो मीनिंग हो गए, एक से ज्यादा हो गए. अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेक्सिकल. Lexical and grammatical meaning. Every word in a sentence carries meaning, but not all meanings are same. लेकिन सारे meaning same नहीं होते. Some words tell us about things, action, or ideas. These meanings are called lexical meanings. Other words help connect, support the structure of sentence. These meanings are called grammatical meanings. Let's break them down simply. Lexical meaning. Lexical meaning is the real meaning. जो हकीकी मतलब होते हैं ना उसको हम लेक्सिकल मीनिंग कहते हैं. द मीनिंग्स यू वुड फाइंड इन अ डिक्शनरी, यानी आप समझ लें डेनोटेशन जिससे हम कहते हैं. दीज आर द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स
like nouns, word, adjectives are adverbs. Boy run blue quickly. ठीक है, ये लेक्सिकल वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मीनिंग शो द फंक्शन। ये फंक्शन को शो करते हैं या रिलेशनशिप को, ताल्लुक को बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स के दरमियान एक सेंटेंस में। दीज वर्ड्स हेल्प बिल्ड द सेंटेंस करेक्टली। फॉर एग्जांपल preposition, conjunction, articles, auxiliary verbs and endings like s or ed, ये ग्रामेटिकल होते हैं। जैसे इज, was, in, and, the, ing, at। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी हैज ईटन द केक। शी शी ईटन एंड केक, ये लेक्सिकल मीनिंग है क्योंकि ये डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। लेकिन हैड, ये ग्रामेटिकल मीनिंग है। दे हेल्प शो टेंस, ये टेंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं। अब लेक्सिकल जो होते हैं, ये वर्ड द वर्ड्स रिफर टू, दो डिक्शनरी में मीनिंग होते हैं। ग्रामेटिकल जो होते हैं, सेंटेंस बिल्डिंग मीनिंग, सेंटेंस के अंदर जो मीनिंग बनते हैं। मॉर्फीम्स, अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटा यूनिट है मीनिंग का एक वर्ड में। इट इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। सम वर्ड्स आर मेड ऑफ जस्ट वन मॉर्फीम, कुछ एक मॉर्फीम से वर्ड्स बने होते हैं, while others have two or more. Every time we add something to words to change its meaning or function, we are adding a morpheme. जैसे अब देखें इसकी टाइप्स जो हैं, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। फ्री मॉर्फीम्स हैं, जैसे बुक, प्ले, हैप्पी, कैट। ये फ्री मॉर्फीम हैं जो खुद स्टैंड कर सकते हैं और इनके अपने मीनिंग होते हैं, इसलिए इनको फ्री मॉर्फीम कहते हैं। बाउंड मॉर्फीम वो होते हैं जो खुद स्टैंड नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ और वर्ड चाहिए होते हैं। जैसे एस है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है और पास्ट के लिए हम ईडी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अन है, ये अपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फुल के लिए एफ यू एल हम फुल यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल अब देखें। ये बुक, बुक्स है, तो ये बुक जो है, बुक ये फ्री मार्फीम है। अब बाउंड मार्फीम जो है, ये एस है, ये खुद स्टैंड नहीं कर सकता। अनहैप्पी में जो अन है, ये बाउंड मार्फीम है, और जो हैप्पी है ये फ्री मार्फीम है। अन खुद कुछ नहीं है, जबकि हैप्पी खुद कुछ है। और केयरफुली में जो फुल और ली है, ये खुद कुछ नहीं है, ये बाउंड मार्फीम है। और जो केयर है, ये फ्री मार्फीम है, खुद स्टैंड कर सकता है। अब हम देखेंगे हेमोनिमी एंड पोलिसिमी। हेमोनिमी एंड पोलिसिमी बोथ डील विद वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग बट दे आर नॉट द सेम। हेमोनिमी जो होते हैं, हेमोनिमी आर वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं दैट साउंड द सेम, जो लगते तो सेम है, आर स्पेल्ड द सेम, बट दे हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, हेमोनिम्स same sound, different spelling and meaning. For example, pair two things and pear a fruit. Sentence: I ate a pear. I ate a pear. I bought a pair of shoes. यानी इनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा होमोग्राफ्स। सेम स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, जैसे बैट, क्रिकेट का बैट, और दूसरा एनिमल, जैसे हमने आगे पढ़ा पीछे पिछले हमने पॉइंट में। इसी तरह जो है होमोनिमी इज व्हेन टू वर्ड्स लुक और साउंड द सेम बट हैव नो कनेक्शन। ठीक है, पॉलीसिमी, पॉलीसिमी इज व्हेन वन वर्ड हैज मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग। जैसे हेड है, तो हेड सर को भी कहते हैं, और हेड जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वो भी होता है। ठीक है जी, तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं ये जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लेक्सिकल एम्बिग्विटी देखते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्विटी हैपन्स व्हेन अ वर्ड हैज मोर देन वन मीनिंग। लेक्सिकल पेचीदगी, एम्बिग्विटी उस वक्त होती है जब एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। एंड द सेंटेंस डज नॉट क्लियरली टेल, और सेंटेंस हमें ये नहीं बताता विच मीनिंग इज करेक्ट, कि कौन सा मीनिंग करेक्ट है। दिस कैन कंफ्यूज द लिसनर, इससे लिसनर कंफ्यूज होते हैं, और रीडर, बिकॉज द वर्ड कैन
be understood in two or more ways. For example, Ali went to the bank. अब बैंक का मतलब रिवर बैंक भी होता है और पैसे रखने वाला भी बैंक होता है। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से बैंक में हमें गया, तो ये कंफ्यूजन होती है। अब जैसे देखें नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, शी कैन नॉट बियर चिल्ड्रन। अब बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, बियर का मतलब जो है वो पैदा करना भी होता है। ठीक है, तो अब ये भी अगेन कंफ्यूजिंग है। तो lexical ambiguity usually happens when a single word has multiple meanings. तो to remove ambiguity, we can make the sentence clearer. हम सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। Ali went to the bank to withdraw money. ठीक है, अब आगे हमें बताया गया टू विथड्रॉ, ये शो कर रहा है कि वो पैसों वाले बैंक में गया। शी कैन नॉट टॉलरेट नॉइजी चिल्ड्रन, वो शोर वाले बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है सेंटेंस मीनिंग। सेंटेंस मीनिंग इज फुल मीनिंग वी गेट फ्रॉम अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस मीनिंग वो होते हैं जो फुल मीनिंग होते हैं, जो हम कंप्लीट सेंटेंस से लेते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द वर्ड्स बट आल्सो फ्रॉम ग्रामर, वर्ड्स, ऑर्डर एंड कॉन्टेक्स्ट। व्हेन वी जॉइन वर्ड्स टुगेदर प्रॉपरली, जब हम वर्ड्स को प्रॉपर वे में ज्वाइन करते हैं, दे गिव अस अ क्लियर मैसेज। दिस ओवरऑल मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस मीनिंग। The dog bit the man. This means the dog attacked the man. The man bit the dog. This means something very different. ये different है, ऐसा generally नहीं होता। ठीक है जी, एक और एग्जांपल, she is reading a book. This tells us what is happening now. The book is being read by her. This has the same meaning but passive voice में है, थोड़ा सा different है। ठीक है, जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं ये लेक्सिकल मीनिंग होते हैं। ग्रामर में टेंस और वॉइस और नंबर आते हैं। कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग, हु इज स्पीकिंग। तो हम कंक्लूड करते हैं जी। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग वर्ड्स। लैंग्वेज का मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इट इज अबाउट यूजिंग दैम in the right way to express correct meaning. We studied, हमने स्टडी किया, और words can point to, कि words किस तरह पॉइंट करते हैं to things directly, reference के तौर पे और denotation के तौर पे, और carry extra feelings जैसे connotation। denotation dictionary meaning, connotation extra meaning। We saw how words relate to each other through sense relation and how they work differently in grammar and vocabulary. We also learned that morpheme, जो morphemes होते हैं, are the smallest part of words that carry meaning, and how some words और किस तरह कुछ words can look or sound the same लगते हैं but have either डिफरेंट हेमोनिमी, उनके डिफरेंट जो हेमोनिमी होती हैं और पॉलिसी मीनिंग होते हैं। लेक्सिकल एम्बिग्विटी शो करती है that one word can cause confusion पैदा कर सकता है if the sentence is not clear. And finally we understood that sentence meaning is, कि sentence का meaning जो होता है is complete idea we get from a sentence, not just the meaning of individual words. All of these points help us understand, ये सारे पॉइंट हमारी हेल्प करते हैं समझने में, use and teach language more clearly. When we understand how meaning works in a language, जब हम ये समझते हैं कि मीनिंग वर्क कैसे करते हैं लैंग्वेज में, we become better speaker, हम बेहतर स्पीकर बनते हैं, better writers and better listener. It also helps us avoid mistake, इससे हम अपनी mistakes को avoid कर सकते हैं, and misunderstanding in everyday communication. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your valuable comments. It was our third unit of semantics, which we have covered in details. In our next lesson, we will study our fourth unit in detail. Thank you very much.